Yesterday, we had discussed that as the Vedic period started growing up or spreading, there were certain people who had started disliking Vedic system. There were many reasons for that, as I told you. One of the reasons was that people could not understand Sanskrit, and therefore they had to be at the mercy of the Brahmins. It was the Brahmins who knew Sanskrit, and that is why they had the command, and they considered themselves superior than the others. The other reason was, as I told you, that people had started, disliking the complex system of worship, Mahayagya, Bali. These were certain things that the common people were not able to afford, and that is why they wanted to have a religion, or they wanted to have a system of worship in which there were no costly sacrifices, there were no great, what should I say? There were no great celebrations. There were no great functions in order to show one's worship or one's belief or one's dedication towards a god. So there were these people also who were disliking the complex riti rivaj, the mushkil riti rivaj of a Vedic system, and they wanted to have a religion, or they wanted to have a system of worship in which was simple and which was easy for the common people to perform. There were other people also who had started, expanding agriculture. They wanted to grow their agricultural, and they wanted to expand their agricultural growth, and that is why they had started clearing forests and started doing agriculture on that. But the major stumble block, or the major problem that stopped them from expanding their agriculture, was the what was that? That was the sacrifice of animals. And the farmers who wanted to expand agriculture needed the bullocks at that time, because they wanted to use them for agriculture. Now, because bullocks were being used for sacrifices, they were not able to have those bullocks, and that is why they started, disliking the Vedic system of sacrificing animals. There were other people, they who wanted to live a simple life. They did not like the idea of urbanization. They did not like how many villages were converting into cities, and they were becoming more complex. They were becoming more busy. They were becoming more about achieving things. They were more about greed, and these people wanted to live a very, very simple life, and that is why they wanted to go back to the time when there were villages, when there were simple methods of living, when there was nothing like lalach and all, and they wanted to live a very simple life. So these were the people who had also started disliking this urbanization. तो एक तरफ वैदिक सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जीवन काफी मॉडर्न बनता जा रहा था और मुश्किल बनता जा रहा था, क्योंकि शहरों की जिंदगी जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है गांव की जिंदगी के मुकाबले। मुश्किल से मेरा मतलब है कि बहुत बिजी जिंदगी होती है, और बहुत बिजी जिंदगी होने की वजह से इंसान के पास इतना समय होता नहीं है कि वो खुद से बैठकर बातचीत कर सके, एक एक सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सुकून की तलाश थी। वैसे लोग थे जिनको अच्छा नहीं लगता था ये अर्बनाइजेशन, ये गांव का शहर में कन्वर्ट हो जाना, और वो वापस एक ऐसी सिंपल जिंदगी गुजारना चाहते थे जहां पर ये सब कुछ, जो शहरों में बिजी होना, जो लालच होना, जो लड़ाइयाँ होना, ये सारी चीजें ना हो। वहीं दूसरी तरफ, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कारण ऐसे भी थे जिसकी वजह से लोगों को वैदिक सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था, या वो वैदिक सिस्टम से हल्के हल्के दूर होते चले जा रहे थे। एक बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई, तीन बड़ी वजह बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में सारी किताबें लिखी गई हैं, और लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। लोग पाली या प्राकृत भाषा बोला करते थे, और प्राकृत भाषा ही बोलना और पढ़ना आती थी उन्हें। अब संस्कृत भाषा को पढ़कर समझने के लिए उनको ब्राह्मण्स के पास जाना पड़ता था। ब्राह्मण्स इसी वजह से सुपीरियोरिटी का फायदा उठाते थे और अपनी पावर को, नॉट सारे ब्राह्मण कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई गलत होता है तो सारे गलत नहीं होते हैं, बल्कि उस समय पर बहुत से लोग ऐसे थे जो ऐसा कर रहे थे, सारे लोग ऐसे नहीं थे।
खैर फिलहाल जो हिस्ट्री हमें बताती है वो ये बताती है कि ब्राह्मण्स ने अपने पावर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यानी पावर का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। वहीं जो सारी टैक्सेस होते थे वो क्षत्रियों को, वैश्याओं को और शूद्रों को देना पड़ते थे, और ब्राह्मण्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करते थे। क्षत्रिय अपनी पावर की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। तो एक तो वैदिक सिस्टम में ये जो वर्ण सिस्टम था, इससे लोगों को नफरत होने लगी, लोगों को डिसलाइकिंग होने लगी। वहीं संस्कृत भाषा एक मेजर प्रॉब्लम थी, वो इसकी वजह से भी लोग वैदिक सिस्टम से दूर होने लगे। साथ ही साथ में लोगों को ये महायज्ञ करना या बलि देना, ये लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। आम इंसान के लिए, जिसके पास इतना पैसा ना हो, उसके लिए मुश्किल हो गया था इस तरीके के रीति रिवाज को फॉलो कर पाना। इसलिए वो भी एक ऐसा वर्शिप करने का एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिसमें सब कुछ बहुत साधारण हो, एक साधारण इंसान भी, एक कॉमन मैन भी आसानी से भगवान तक पहुंच पाए, या अपने आप को ऐसा महसूस कर सके कि वो भी अच्छे तरीके से भगवान की उपासना कर पा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ किसान थे जो अपनी किसानी को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन उनके पास बुलक्स नहीं होती थी, क्योंकि ज्यादातर बुलक्स को सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और गांव वालों को वो नहीं मिल पा किसानों को वो नहीं मिल पाती थी। तो ये कुछ एक कारण थे जिसकी वजह से लोगों के दिल में ये था कि भाई कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और लोग हल्के हल्के करके जो था वो दूर जा रहे थे। तो अब यानी वैदिक सिस्टम से दूर चले जा रहे थे। तो अब उस समय पर जो था वो वैदिक सिस्टम के अंदर ही एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया, और उसको कहा जाने लगा उपनिषद। यानी कई सारे उपनिषद लिखे गए, और उन उपनिषद में अ, जो था ये बलि का, या मुश्किल जिंदगी का, या मुश्किल प्रार्थनाओं का, बड़े बड़े महायज्ञ महासभाएं करने का, ये करने के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि ये बताया गया कि कैसे इंसान एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर सकता है, अच्छी जिंदगी, साधारण जिंदगी और पवित्र जिंदगी गुजार सकता है, जिसमें उसको कुछ भी महंगी बलियां देने की जरूरत नहीं है, बल्कि साधारण जिंदगी गुजारने के लिए उसे बड़ी सिंपल लाइफ और सच्ची लाइफ गुजारना पड़ेगी, तब उसके दिल में हमेशा के लिए सुकून रहेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उपनिषद जो है वो उसका मतलब होता है अपने गुरु के पास बैठकर सीखना। सो गुरु के पास बैठकर जो लोग इल्म हासिल करते थे, जो लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, उसको, उन किताबों को, जो जिसमें ये ज्ञान लिखा हुआ है, उन किताबों को उपनिषद कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि कई सारे संत रहे हैं जिन्होंने उपनिषद लिखे। आपको उन सारी चीजों के बारे में हमने कल इस वाले पैराग्राफ से बताया था। मैं एक बार थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ को हाईलाइट कर दूं कि हमने इस वाले पैराग्राफ में बताया था कि बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे साधु संत जो हैं वो ये लोग गुजरे हैं। इसके अलावा दो महिलाएं भी थी। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी दो महिलाएं थी जो संत थी, साधु थी, तो गार्गी और मैत्रेयी थी, जो जिनका उपनिषद में जिक्र किया गया है कि वो महान संत और साधु थी, और लोग उनसे काफी इन्फ्लुएंस होते थे। इसके अलावा बहुत ही गरीब लोग जो थे वो कभी भी उपनिषद की बैठकों का हिस्सा नहीं बन पाए। उसमें से सिर्फ एक एग्जाम्पल है सत्यकाम जबाली, जो कि एक बहुत गरीब औरत, जबाला नाम की औरत थी, उनके बेटे थे। वही एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो गरीब होने के बावजूद भी इस उपनिषद वगैरह का हिस्सा बन पाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फेमस उपनिषद कौन से हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उपनिषद किस टाइम से किस टाइम के बीच में लिखे गए हैं, वो 1000 बीसी से लेके 400 बीसीई के बीच में लिखे गए हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। इनको कंपाइल करने का और बहुत अच्छा बनाने का काम किन्होंने किया? आदि शंकराचार्य ने किया, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया गया है? पर्शियन, इंग्लिश और फ्रेंच में किया गया। सो इस तरीके से जो है वो उपनिषद ने अ, एक एक हिंदुइज्म में ही एक सॉल्यूशन दिया, जिसे कहा जा सकता है एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कि अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कैसे जो है वो बेहतर जीवन गुजारा जा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग थे जो कि इस सब से अछूते थे। जैसे महिलाएं इस सब से दूर थी, महिलाओं को ये ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। जैसे गरीबों को ये ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। जैसे शूद्र लोगों को ये ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। हमने पढ़ा कि गरीब आमतौर पर उपनिषदिक सिटिंग्स में, मीटिंग्स में नहीं हो पाते थे, महिलाएं नहीं होती थी। बहुत कम महिलाएं हैं, जिसमें से गार्गी और मैत्रेयी का नाम पता है। गरीबों में सिर्फ एक का नाम पता है, जिन्हें सत्यकाम जबाली कहा जाता है। उसके अलावा हमें कोई नहीं मालूम है। साथ ही साथ में लोग शहरों की जिंदगी से तंग आ रहे थे।
लोग लालच की जिंदगी से तंग आ रहे थे। लोग ये जो माया है, मोह माया है, इस सब से परेशान हो रहे थे। लोगों को साधारण जिंदगी जीना थी। लोग परेशान थे, लोगों के मन में बेचैनी थी कि कैसे आम साधारण जिंदगी जी जाए, जिसमें ये सारे मोह माया, ये सारे लालच, ये सारे जो है वो ये सारे कष्ट, ये सारे दुख, ये मन का जो सुकून छिना हुआ है, वो सारी चीजें कैसे खत्म हो और कैसे हम एक सुकून की जिंदगी व्यतीत कर सकें। उसका समाधान जो है वो लोगों को मिला इस नए धर्म में जिसका नाम है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में एक नया धर्म उभर के आया जिसने लोगों को कैसे पाक, साफ, साधारण और सुखी जिंदगी जीने की कला सिखाई, जीने का सॉल्यूशन दिया। अब ये बुद्धिज्म क्या धर्म है, बुद्धिज्म में क्या-क्या बातें कही गई हैं, बुद्धिज्म की शुरुआत करने वाले कौन इंसान थे, उनके बारे में हम अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुद्धिज्म जो धर्म आया और इस धर्म को लाने वाले जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति खुद अपने आप शहर की जिंदगी से तंग आ चुके थे, वर्ण व्यवस्था से तंग आ चुके थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इनके बीच में जो एक गैप हो चुका था, उससे तंग आ चुके थे, लालच की जिंदगी से तंग आ चुके थे। कौन थे ये बुद्ध? बुद्ध असल में सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध का जो असली नाम है, वो है सिद्धार्थ गौतम। इनको प्रिंस सिद्धार्थ भी कहा जाता है। प्रिंस का मतलब होता है राजा का बेटा, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो है वो बेटे होंगे किसी राजा के। किस राजा के बेटे थे? तो जो राजा थे वो थे शुद्धोदन, ठीक है? शुद्धोदन एक राजा थे जो कि कपिलवस्तु, यहाँ पे लिखा हुआ है, कपिलवस्तु के राजा थे, यानी कपिलवस्तु नाम का एक किंगडम था, उसके राजा थे शुद्धोदन, ठीक है? और उनकी जो बीवी थी, वो थी माया। किनकी बीवी? शुद्धोदन की। सो शुद्धोदन और माया के बेटे थे प्रिंस सिद्धार्थ। अब ये प्रिंस ही थे, राजा नहीं बने थे। प्रिंस का मतलब होता है राजा का बेटा, और जब वो राजा बन जाता है तो उसे किंग कहा जाता है, उससे पहले वो प्रिंस होता है। तो अभी वो प्रिंस ही थे, और उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। और कब हुआ था? 566 बीसीई में हुआ था। अब ये हम जो डेट्स हिस्ट्री में बताते हैं वो बताना जरूरी क्यों होती हैं? वो बताना इसलिए जरूरी होती हैं कि हम ये समझ सकें कि किस वक्त के आसपास ये सब कुछ हो रहा था। यानी 566 बीसीई से हमारी समझ में ये आया कि वैदिक पीरियड गुजर चुका था, और वैदिक पीरियड के बाद ये उपनिषद वाला समय जो था वो चल रहा था। देखिए यहाँ पे 1000 बीसीई से लेके 400 बीसीई तक उपनिषदिक पीरियड चल रहा था। उसी समय में 566 बीसीई में जन्म होता है प्रिंस सिद्धार्थ का। प्रिंस सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना जीवन जो है वो बिताना शुरू कर देते हैं। राजा के बेटे होते हैं। राजा ने उनके सुख के लिए हर व्यवस्था कर रखी होती है। राजा जो है यानी शुद्धोधन जो राजा है वो अपने बेटे सिद्धार्थ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहते, और हर तकलीफ से उनको दूर रखना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की तकलीफ प्रिंस सिद्धार्थ को नहीं हो। देखिए, खुशी का एहसास भी तब होता है कि जब दुख हो। जब दुख ना हो तो सुख पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। अब मान लीजिए हमारे दिल में किसी बात का गम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे दिल में इस बात का गम है कि हम गरीब हैं, तो जब गरीब होने का दुख है तभी अमीर बनने की कामना होगी, है ना? और अगर हमारे दिल में ये दुख है कि अमीर तो हैं लेकिन दिल में सुकून नहीं है, तो आपको सुकून बनने की ख्वाहिश, सुकून को हासिल करने की ख्वाहिश होगी। तो अब ये जो बाहर की सारी चीजें थी, बाहर की सारी चीजें मतलब दुनिया के सारे जो पैसा, दौलत, नौकर, चाकर, सेवक, गाड़ी, ये सारी चीजें, गाड़ी से मेरा मतलब है उस जमाने में जो घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी, वो सारी चीजें प्रिंस सिद्धार्थ के पास थी। लेकिन प्रिंस सिद्धार्थ का मन कहीं अंदर ही अंदर व्याकुल रहता था, बेचैन रहता था। शुरू से ही उनको ये दुनिया के लालच, दुनिया की सारी चीजें, कि सोना, चांदी, जेवरात, सोने की प्लेट्स में खाना, नौकरों का लगातार उनकी सेवा में लगे रहना, उनके कुछ लोग उनकी बटरिंग करते रहते थे। बटरिंग मतलब उनको उनको एक तरीके से मक्खन लगाते रहते थे, ताकि किसी तरीके से प्रिंस जो है उनसे खुश हो जाए, और खुश हो जाए तो उनको कुछ इनाम दे दें। तो प्रिंस को ये सारी चीजें समझ में आती थी, और उनको बुरा लगता था कि ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो
हुआ क्या, वो ज्यादातर जो वक्त है वो मेडिटेट करने में गुजारा करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो, उनको वर्ल्डली अफेयर्स अच्छे नहीं लगते थे। वर्ल्डली अफेयर्स अफेयर्स का मतलब होता है दुनिया की चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। ये जो दुनियावी चीजें हैं, बाहरी दिखावा है, ये उनको अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए वो शांति से मेडिटेट किया करते थे और मेडिटेट करके अपना जीवन ज्यादातर गुजारा करते थे। ज्यादातर अब लॉन्ग आवर्स वो मेडिटेट करने में गुजारा करते थे। अब हुआ क्या, चार उनको ऐसी चीजें देखने के लिए मिली जिन्होंने सिद्धार्थ की जिंदगी को बदल के रख दिया। वो चार चीजें कौन सी थी? प्रिंस सिद्धार्थ अपने किंगडम में घूमने के लिए निकले, घुड़सवार के साथ घोड़े पे बैठकर, यानी घोड़ा गाड़ी जो होती थी, बग्घी जो होती थी, उस पे बैठकर निकले। पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे। एक दिन लगाया, दो दिन लगाया, कई दिन तक पूरे शहर के चक्कर जब लगाते रहे तो उन्होंने चार ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनको सोच में डाल दिया। जब एक बार वो गुजर रहे थे तो एक जगह पे उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, दूसरी जगह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, तीसरी जगह पर देखा एक आदमी बीमार, एक आदमी की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी के पास उसके परिवार के सारे लोग रो रहे हैं और उसको उठाकर शमशान घाट ले जाने की तैयारी करी जा रही है। वहीं एक तरफ उन्होंने देखा एक साधु, एक साधु जो दुनिया की सारी चीजें छोड़ा हुआ, सिर्फ एक चादर से बना हुआ कपड़ा पहना हुआ चलता चला जा रहा है, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही सोच में, अपने ही ख्यालात में मगन है। तो सिद्धार्थ ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो बड़े डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने सोचा कि यार जिंदगी है क्या? एक तरफ एक बीमार है, एक तरफ एक बूढ़ा है, एक तरफ एक आदमी मर चुका है, और एक तरफ एक आदमी है जो इन सब से दूर साधु संत बन के बस चला चले जा रहा है। तो सोच में पड़ गए कि ये चक्कर क्या है, क्या होना है इंसान के साथ? क्या ये तकलीफें सबके साथ आना है? क्या सब बीमार पड़ेंगे? क्या सब बूढ़े हो जाएंगे? क्या सब मर जाएंगे? और अगर मरना ही है तो फिर ये जो इंसान इन लालच में, इन चीजों में लगा हुआ है, क्या ये सही है? ये जो लालच है, ये जो पैसा कमा लूं, ये सारी चीजें जो प्रलोभन है दुनिया के, उन सब से कैसे मतलब ये क्या जरूरी है इंसान के लिए? तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने अपनी शादी होने के बाद अपनी, और उनका एक छोटा-सा बच्चा भी था, लेकिन वो इतने डिस्टर्ब हो गए इन सारी चीज़ों से, इन सारी सोच में वो इतना ज़्यादा डूब गए कि उन्होंने सोचा कि भाई जब तक मैं राजा के दरबार में रहूँगा, जब तक मैं राजा के महल में रहूँगा, तब तक तो मैं इन चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपने सवालों का जवाब ढूँढूँ। मैं जानूँ ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं जानूँ क्या ज़िंदगी का मकसद यही है कि बस यहाँ पे रह जाओ और यहाँ पर लालच में पड़े रहो? मैं चाहता हूँ कि मैं ये समझूं कि जीवन किसे कहा जाता है। तो ये जो आखिरी इंसान था, एक साधु, इस साधु को देखकर उनके मन में बहुत अलग तरह के विचार आए थे कि भाई ये कौन है जिसके मन में कोई लालच नजर नहीं आता, जो बड़ी सादगी के साथ अपनी ही जिंदगी में, अपने ही जीवन में, अपनी सोच में मगन चले चला जा रहा है। तो उन्होंने इस वजह से अपना घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। 29 ईयर्स की एज में, जब उनकी बीवी भी थी और उनका छोटा सा बेटा भी था, वो उन्होंने ये मुश्किल फैसला लिया कि नहीं, ठीक है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मैं उन दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो जाएगा, और वैसे भी राजा के दरबार में रहते हैं, वो राजा के महल में रहते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। लेकिन 29 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर चले गए, अपना महल छोड़कर चले गए, और छोड़कर जाने के बाद वो जंगल-जंगल भटकते रहे, लोगों को ढूँढते रहे, कुछ ऐसा टीचर, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उनको उनके सवालों का जवाब दे सके, जो जो उनकी समस्या का निदान कर सके, ऐसा कोई इंसान मिल जाए, उसकी तलाश में वो निकल पड़े। तो ये जो मौका है, ये जो टाइम है, जिस टाइम पर उन्होंने अपने महल को छोड़ा और सच की तलाश में, अपने सवालों के जवाब की तलाश में वो निकल गए, उस चीज़ को कहा जाता है, उस इंसिडेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है? वो आपको मैंने हाइलाइट कर दिया है, यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर 156 में, लास्ट में, राइट साइड में, लास्ट पैराग्राफ में, 4th लाइन में, महाभिनिष्क्रमण। ये जो महाभिनिष्क्रमण क्रमण क्या है? ये वो इंसिडेंट है जब प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा था, और घर छोड़ के वो जंगलों में भटकना शुरू कर दिया था। तो घर छोड़ना, अपने महल को छोड़ना, उस इंसिडेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। खैर वो भटकते-भटकते राजगृह पहुँचे। राजगृह एक जगह है, राजगृह पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद वो अलारा कलम, 2 गुरु थे, अलारा कलम और उदक रामपुत्र, इन 2 बड़े साधु संत के, इन बड़े टीचर्स के वो शिष्य बन गए।
और शिष्य बन के उन्होंने कोशिश करी कि उनके साथ रहूं और साथ रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूं, ये समझूं कि जीवन मरण ये सब कुछ है क्या, कि पैदा हुए, फिर लालच में लगे रहे, फिर बीमार पड़ गए, फिर मरने के बाद फिर कहा जाता है वैदिक सिस्टम में कि फिर पैदा हो जाएंगे, फिर से यही होगा कि फिर हम बड़े होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ चक्कर है क्या। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये इन टीचर के पास गए, लेकिन इन टीचर के पास रहने के बावजूद भी उनको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। उनको वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उनको लगा कि अभी सवाल सही तरीके से उनका जवाब नहीं दिया गया है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप अपने टीचर से कोई सवाल पूछते हैं और आपके टीचर पूरे तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अक्सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों से जब बात करता हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे कोई सवाल करता है, तो मैंने भले ही अपनी तरफ से पूरा सवाल का जवाब दे दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चे का जो सवाल था, उस सवाल का वो जवाब नहीं मिल पाया जो वो ढूंढना चाह रहा था। तो ऐसा ही हुआ प्रिंस सिद्धार्थ के साथ भी कि 2 महान टीचर्स के साथ वो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि नहीं, सवाल का जवाब तो पूरे तरीके से नहीं मिल पाया है। तो फिर वो चले गए। फिर वो जंगल में चले गए वापस, और जंगल जाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को हटाकर पेनेंस पेनेंस किया। अब ये पेनेंस शब्द का मतलब क्या है? पहले ये समझेंगे, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं कि गया नाम की एक जगह है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, गया नाम की जगह है, जहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे, जंगलों में एक पेड़ के नीचे 6 साल तक उसी जगह पर बैठकर सोचते रहे। पेनेंस कहा जाता है दुनिया की सारी चीज़ों को त्याग कर, दुनिया की सारी चीज़ों को त्याग कर सारी चीजों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ जंगलों में बैठ रहकर सोचने की कोशिश करना कि सच्चाई क्या है, जीवन क्या है, मरना क्या है, लालच क्या है, कैसे सुकून की जिंदगी गुजारी जा सकती है। पेनेंस कहा जाता है सारी चीजों को त्याग देना। तो उन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया, और त्यागने के बाद 6 साल तक गया में एक पेड़ के नीचे बैठकर लगातार सोचते रहे। हमारे अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाए। ऐसा हो सकता है। देखिए, आप कभी ऐसा होता है कि हम अक्सर ऐसा होता है कि अपने सवालों के जवाब दूसरों से पाना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे दिल के अंदर होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं। ऊपर वाले ने हम सबको बुद्धि दी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने सवालों के जवाब अपने आप नहीं निकालते हैं। बल्कि सवाल तो अपना सोच लेते हैं, जवाब हम किसी दूसरे से चाहते हैं। और अगर हम कभी भी शांति से एक कमरे के एक कोने में लेटकर अपने सवालों के जवाब सोचने की कोशिश करें, तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे दिमाग में भी इतनी ज़्यादा सोच, समझ और ताकत है कि हमारा दिमाग हमारे कई सारे बड़े-बड़े सवालों को, जो हमें लगता है कि शायद हम जिसका जवाब नहीं दे सकते, उन सारे सवालों का जवाब हमारा ये छोटा-सा दिमाग देना शुरू कर देता है। हमारे दिमाग में वो सारे थॉट्स, वो सारे विचार, वो सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, जो हमें हमारे सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो वाइज़ पीपल होते हैं, जो बहुत समझदार लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो दूसरों से सलाह-मशवरा कम करते हैं, बल्कि अपने आप बैठकर अपने आप से बातचीत ज़्यादा करते हैं। गांधी जी की खास बात थी। गांधी जी जब आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और पूरे देश को एक लीडर की तरह लीड कर रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीना तान के खड़े थे, और दिन भर वो बिज़ी रहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बात का बहुत ध्यान रखा था कि दिन में कम से कम 1 घंटा वो किसी अकेले कमरे में, बिल्कुल बंद अकेले कमरे में ध्यान लगाकर, यानी बिल्कुल मेडिटेशन करते हुए गुज़ारा करते थे और अपने आप से बात ज़रूर किया करते थे। बाहर भले ही कितना इम्पोर्टेंट आदमी बैठा हुआ हो, चाहे वो अंग्रेज़ ऑफ़िसर बैठा हुआ हो, चाहे वो बड़े-बड़े लीडर्स बैठे हुए हों, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे बड़े-बड़े लीडर्स उनके इंतज़ार में बैठे हुए हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर बैठा करते थे और ध्यान लगाया करते थे और अपने आप से बातें किया करते थे। तो वही कुछ हुआ, और उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाया करते थे। सेम हुआ गौतम बुद्ध के साथ कि जब गौतम बुद्ध ने अपने साथ बातें करी, जब गौतम बुद्ध ने अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करी, तो उनको अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। और वही जवाब वो फिर आगे जाकर दुनिया को बताएँगे। वही ज्ञान वो दुनिया के लोगों को बताएँगे, वही ज्ञान दुनिया के लोगों को जब बताया जाएगा, तो दुनिया के लोग उससे उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। अब ये कहाँ पे हुआ था? पीपल का एक पेड़ था,
बोध गया में, बोध गया आज भी है, बिहार की जगह, बिहार में बना हुआ है आज भी बोध गया। बोध गया बिहार में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ये सारे विचार आए और फिर उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट किसे कहा जाता है? एक शब्द आया है यहाँ पे, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है कि सारे जो जीवन मरण से जुड़े हुए जो सारे सवाल हैं, दुनिया और जिंदा होने और मरने के क्रम में जो छुपे हुए सवाल हैं कि कैसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उस सवाल के जवाबों को उन सवालों से जुड़े हुए जवाबों का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उसको कहा जाने लगा एनलाइटनमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े टीचर की मीटिंग अटेंड करते हैं या उनका लेक्चर अटेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि वो बहुत ही एनलाइटनिंग लेक्चर था। एनलाइटनिंग लेक्चर का मतलब जो उस लेक्चर था, उस लेक्चर को सुनने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब इंसान को मिल गए और साथ ही साथ में बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गए और ऐसा लगा कि हाँ, यही तो चाहते थे हम, जो इसका सवालों का जवाब हमें मिल चुका है। खैर, आज बिहार में एक जो बोध गया नाम की जगह है, वहीं पर उसी पीपल के पेड़ के, जहाँ पे पीपल का पेड़ था, वहां पर अब महाबोधि मंदिर बन चुका है। और महाबोधि मंदिर में आप जाकर के देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो जो बातें कही हैं, उन बातों के बारे में आप वहां पे एक नई नई जो है वो जवाब सीख सकते हैं। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने को जब इन सवालों के जवाब मिल गए, तब उनको बुद्ध कहा जाने लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रिंस सिद्धार्थ ने अपने आप ही अपना नाम बुद्ध रख दिया होगा, बल्कि बुद्धा जो लोगों ने उनको कहना शुरू किया, वो कहना शुरू किया क्योंकि बुद्ध कहते हैं ज्ञानी इंसान को, जो बहुत बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, उसको बुद्ध कहते हैं। तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया बुद्ध। लोगों ने कब कहना शुरू किया? जब वो लोगों में गए और लोगों में जाने के बाद उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को अपनी बातें बताई, तब लोगों की समझ में आने लगा कि हाँ यार, बात तो सही है। और तब लोगों ने उनको बुद्ध कहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला लेक्चर, सरमन कहा जाता है लेक्चर को, उन्होंने अपना पहला लेक्चर सारनाथ नाम की जगह पे दिया और वहीं से इसको कहा जाता है, इस इंसिडेंट को, जब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था, तो उसको कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्म और नीचे लिखा हुआ है चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म के चक्र का प्रवर्तन हो चुका है, यानी टर्न हो चुका है। अब पहिया जो है वो धर्म के जो कानून है, उनका जो पहिया है वो चल चुका है, अब वो टर्न हो चुका है। बची हुई जिंदगी उन्होंने जो था वो नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी गंगा नदी के आसपास के इलाके हैं, वो वहाँ सब जगह ट्रैवल करते रहे, सब जगह पैदल जाते रहे, जहां जहां से गुजरते थे वहां वहां के लोगों के सवाल पूछते थे, उनके सवालों के जवाब दिया करते थे और लोगों को ये जो उनकी जो नई सोच थी उसके बारे में लोगों को बताते चले गए और बहुत सारे लोग थे जो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते चले गए और उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अ, अब बुद्ध जो हैं उनकी चार मेन बातें हैं, चार मेन सच्चाइयां हैं। उनका कहना है कि चार सच हैं, इन चार सच को जान लोगे तो उन चार सच को जानने के बाद आठ रास्ते हैं, उन आठ रास्तों को अगर फॉलो करोगे तो फिर अपने जीवन में तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी और बड़े सुकून का जीवन व्यतीत कर सकोगे। चार कड़वे सच, और उन चार कड़वे सच को जानने के बाद आठ रास्ते, उन आठ रास्तों को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो जीवन में जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और सुख की जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। और उसी को कहा जाता है, इन आठ रास्तों को कहा जाता है एट फोल्ड पाथ या आर्य अष्टांगिक मार्ग। इन्हें कहा जाता है एट फोल्ड पाथ या आर्य अष्टांगिक मार्ग। आपसे पूछा जा सकता है एट फोल्ड पाथ को संस्कृत में क्या कहा जाता है या हिंदी में क्या कहा जा सकता है, तो उसे कहा जाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब बुद्धा की बेटा, अब ये बुद्धा की क्या टीचिंग्स थी और उन्होंने क्या सिखाया लोगों को और क्या क्या रास्ते बताए लोगों को और क्या क्या किताबें उन्होंने लिखी, उनके बारे में हम कल बातचीत करेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनका कोई भी सवाल नहीं है और मेरी तरफ से क्लास पूरी हो चुकी है, जिनका कोई भी सवाल नहीं है वो जा सकते हैं इस मीटिंग को छोड़ करके, और जिन लोगों के सवाल हैं वो रुक जाए यहाँ पे, मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। नियति सिंह, सर प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम द मेजर उपनिषद वर
बेटा आपका सवाल नहीं समझ पाए नियति, आपने इसमें क्या लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन में? ऋषभ का कहना है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस का मतलब है जो चीज जीवित हो, ठीक है, जो चीज मौजूद हो उसे एग्जिस्टेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नियति का सवाल है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रलोभन? प्रलोभन कहा जाता है लालच को। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाभिनिष्क्रमण? बेटा महाभिनिष्क्रमण का मतलब मैंने बता दिया कि जब प्रिंस सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर सच की तलाश में जंगलों में निकल चुके थे, तो उस इंसिडेंट को, उस मौके को, उस वक्त को, उस इवेंट को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऋषिता का कहना है सर इन पेनेंस डिड दे स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड? पेनेंस में वैसे तो ऐसा होता है कि पेनेंस का मतलब होता है कि इंसान खाना पीना भी त्याग देता है या फिर खाना पीना बहुत कम कर देता है, जस्ट इनफ टू सरवाइव। एक होता है कि हम खाना पीना अपने टेस्ट बड्स को अच्छा महसूस कराने के लिए खाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो फ्लेवर्स हमें अच्छे लगते हैं वो हम खाते हैं। लेकिन एक होता है कि सिर्फ उतना पानी पीना कि मर ना जाए, सिर्फ उतना खाना खाना कि भूख जो है भूख शांत हो जाए और बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाए कि खा सकें, कि जो है वो चल सके, यानी बॉडी सूख ना जाए, बॉडी मर ना जाए, तो सिर्फ उतना सस्टेन करने के लिए। तो अब इस चीज को लेकर के कि उन्होंने खाना पीना पूरे तरीके से त्याग दिया था या खाना पीना करते थे, उसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान खाए खाए और पिए बगैर 6 साल तक जिंदा रह ले, इसलिए उन्होंने खाना पीना नहीं त्यागा था, लेकिन बहुत कम खाते थे, इतना कम खाया करते थे कि बस जिंदा रह सके। फिर उसके बाद जो है वो आगे ये तौहीद ने नहीं मालूम क्या क्या लिख करके भेजा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नक्श का कहना है सर व्हाट इज धर्म? यहाँ पर धर्म का मतलब वही है, धर्म मतलब जिसे हम धर्म कहते हैं, रिलीजन। तो रिलीजन को ही धर्म कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो धर्म बेसिकली जो शब्द है, यहाँ पे जो धर्म का मतलब है वो है कानून। कानून मतलब जीवन को जीने का कानून, जीवन को जीने का तरीका। तो उनका उनका कहना यह है, उन्होंने क्या किया था, बुद्ध ने आके जीवन जीने का जो क्रम था उसको बदल दिया था। जिस तरीके से चलता जा रहा था जीवन का, जो धर्म का एक पहिया था, जिस तरीके से जीवन जीने का पहिया घूमता जा रहा था, उन्होंने अब उसे टर्न कर दिया था, उन्होंने उसको बदल दिया था, और बदलने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया था लोगों को, ताकि लोग इस लालच में, इन अजीबो गरीब जो रीति रिवाज बना लिए थे उनसे खुद को दूर रख सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। नियति सिंह सर व्हाट इज आर्य अष्टांग मार्ग? बेटा आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब है, ओके बेटा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब है वो 8 रास्ते, वो 8 तरीके, जिन 8 तरीकों को यदि इंसान फॉलो कर ले तो उसके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे और सुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेगा। अब वो 8 रास्ते कौन से थे और वो 4 कड़वे सवाल, कड़वी सच्चाइयां कौन सी थी, उसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। और बताइए, किसी का कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो आप लोग मीटिंग छोड़ करके जा सकते हैं, और हम कल जब हमारी क्लास होगी तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। ओके, यू वेलकम। तो और मुझे नहीं लगता कि किसी और का कोई भी सवाल है, सो नाउ लेट अस एंड द क्लास, और हमारी कल मुलाकात होगी, कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।